ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡು. ಮಾತು ಬರೆದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತು ಬರೆದ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು, ಮಾತನಾಡಿಸು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯಾರನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 138ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 138. ವಿಲ್ ರೀಡ್ Psalm 138 as responsive reading. भजन संहिता 138वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में हम पढ़ेंगे. पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन हम साथ पढ़ेंगे. ऐसे बारी बारी हम पढ़ते रहेंगे. Psalm 138, भजन संहिता 138. मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है. जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया. है यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरा वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है. यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकार को दूर ही से पहचानता है. चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा. तो मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा. आखिरी वचन हम साथ पढ़ेंगे. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा. है यहोवा, तेरी करुणा सदा की है. तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ परलोकದ प्रार्थना ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे. Come, let us pray. After the prayer, I would request all the members to say the Lord's Prayer together. ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ವಾರವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಿ, ನಡೆಸಿದಿ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನೇ, ಈಗ ಮತ್ತು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯದ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನೆ, ಇವರನ್ನು ನೀನೇ ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನೀನೇ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಈ ರೋಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ರೋಗದಿಂದಾಗಲಿ, ಭಯದಿಂದಾಗಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು. ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜರುಗಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಡೆಸು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ವಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ತುಂಬುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನೀನೇ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರು, ಮೇಡಮ್, ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನೇ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಇವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾತುಳ್ಳದ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಯಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 27ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಯೋಯಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 27. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ Joel chapter 2 verses 12 to 27. Joel chapter 2 verses 12 to 27. पुराने नियम से लिया हुआ भाग योएल का किताब, उसका 2रा अध्याय 12वां वचन से लेकर 27 वचन तक.
मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, है यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज बाग की नामधराई न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका आगा तो पूरब की ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। है देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। है मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। है सियोन के लोग, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहला वर्षा बहुताई से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिडियो और एलेक और हासिल ने और गाजम नाम टिडियो ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीष दे। ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, Romans chapter 13 verses 11 to 14.
नए नियम में रोमियो को लिखा पत्र उसका 13वां अध्याय 11 से 14 वचन तक, रोमन्स 13:11-14। Do this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep. For now salvation is nearer to us than we believed. The night is almost gone, and the day is near. Therefore, let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. May the good God add his blessing to the reading of the portion. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन में जाने से पहले. परम प्रधान परमेश्वर, हम फिर एक बार आपको धन्यवाद करते हैं. आपके वचनों को इस समय मनन करते समय विनती करते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा की अगुवाई हमें होने दे और आपके वचन की गहराई को हम सारे लोग समझ सके और उसका अनुसरण कर सके, ऐसे अनुग्रह करें. धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, आमेन. प्रियो, आज का जो मेरा संदेश है, इस संदेश को मैंने शीर्षक इस तरह दिया है कि अब भी देर नहीं हुई है. अब भी देर नहीं हुई है. इट्स नॉट टू लेट. अगर हम हमारे इस देश को रोज़ाना हम न्यूज़ देखते रहते हैं, रोज़ाना हम हमारे इर्द गिर्द चलने वाले विषयों को हम समझ रहे हैं. हमारे देश को इस समय अगर हम एक ऐसी नज़र से देखें जहाँ पर हमारे देश में बहुत खामियां हमें दिख रही है, या हम देख सकते हैं. देखिए, हमारे देश में, देश के अंदर भी समस्या है, देश के बाहर भी समस्या है. आज हम सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं न्यूज़ टीवी में, तो हमारे देश के चारों ओर दुश्मनों की होड़ लगी हुई है. दूसरे देश हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार है. और हमारे देश के भीतर भी अगर हम देखें तो महामारी से पीड़ित लोग हैं, भुखमरी से पीड़ित लोग हैं, काम न होने के कारण परेशानी में, गरीबी में लोग हैं. और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि पिछले सप्ताह स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं. और ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है. ये सारी विषय, ये सारी विपत्ति एक साथ हो रही है. क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये परमेश्वर का क्रोध है, या परमेश्वर हमें हमारा न्याय कर रहा है? प्रियो, परमेश्वर का वाचा या परमेश्वर का वचन हम सभी को धैर्य, बल और हम सभी को एक तृप्त जिंदगी देता है या देना चाहता है. लेकिन हम वह हासिल नहीं कर पा रहे हैं. कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं. हम परमेश्वर के वाचा के जो आशीष हैं उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अब तक. उस कारण को हम जानेंगे. देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो माहौल है, अब जो माहौल है, ये माहौल बहुत साल पहले, कई हज़ारों साल पहले जब योएल नाम का नबी था, उस समय ये ऐसे ही माहौल का उत्पन्न हुआ था या निर्मित हुआ था. वहाँ पर भी इज़राइली लोग
उनके बीच बहुत सारे अलग अलग समस्याओं का उत्पन्न हुआ, और योएल उन समस्याओं को लेकर वो ये कहता है कि परमेश्वर का न्याय का समय है, ये परमेश्वर न्याय कर रहा है। ये कोई मनुष्य का बनाया हुआ या मनुष्य का विनाशकारी सोच नहीं, बल्कि परमेश्वर इसमें स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है। इसीलिए योएल कहता है कि मन फिराओ, वापस आओ। अगर ये किताब को हम पूरी तरह पढ़ें तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा पाप के लिए परमेश्वर मनुष्य को दंड दे रहा है या किस कारण मनुष्य को छोड़ दिया। लेकिन अगर इस किताब को बारीकी से पढ़ें तो वहाँ पर कुछ हमें इस तरह दिखता है कि परमेश्वर के विरुद्ध लोग चल रहे थे। परमेश्वर को महत्व न देते हुए वे लोग अपने ही जीवन में संतुष्टि पाने की कोशिश कर रहे थे, और परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के कार्यों का कोई विशेष या कोई बात वे लोग ध्यान न देते हुए अपनी जिंदगी अपनी इच्छा अनुसार जी रहे थे। इसीलिए परमेश्वर को या परमेश्वर क्रोधित हुआ। ये लोग परमेश्वर के स्थान को दूसरे भगवानों से मिला दिए। परमेश्वर के स्थान को या परमेश्वर को वे लोग अपने जीवन से, अपने घरों से, अपने परिवार से, अपने सब कुछ जगहों से धीरे धीरे करके हटाते गए, और वे लोग बहुत ही एक परमेश्वर के भयंकर रीति से परमेश्वर के विरुद्ध वे लोग चलने लगे। यही कारण है कि परमेश्वर ने दंडित कर रहा था। लेकिन जैसे हम सभी को पता है कि परमेश्वर हमारा दयालु है, वो बहुत ही, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्रोध नहीं करता, या उसका क्रोध बहुत ही धीमी गति से चलता है। वो अपने लोगों को चाहता है, अपने हस्तकला को, अपने हाथों से बनाए हुए रचना को बहुत चाहता है। इसीलिए योएल ने इस किताब में केवल दंड के बारे में नहीं, बल्कि इस किताब में योएल ने एक आशा के बारे में या पुनर्स्थापना के बारे में या परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में भी बात कर रहा है, बता रहा है। प्रियो, देखिए, हम बारी बारी से देखें। पहले समस्या को हम देखें। समस्या क्या थी वहाँ पर अगर पहला अध्याय का 4वां वचन देखें तो वहाँ पर लोगों के पास खाना नहीं था। सारी फसल बर्बाद हो चुका था। वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, और इतने नहीं, वहाँ पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ था, और वहाँ पर सारे लोग, वे लोग चिंतित थे। अब वहाँ पर लोग जो अच्छा है उसे बुरा कह रहे थे, और जो बुरा है उसे अच्छा कह रहे थे। वैसे सोच के लोग थे, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग पवित्रता को हटाकर अपवित्र चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे थे। वे लोग वहाँ पर परमेश्वर को जो देना था वो ना देते हुए अपने ही जीवन में मगन थे। प्रियो, क्या ये बातें, जो लिखी हुई बातें, हमारे देश में या हमारे जीवन में लागू नहीं होता? देखिए, हमारे देश में कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले या साल पहले टिड्डियों का आक्रमण हुआ, फसल नष्ट हो गए, लोग भूखमरी से पीड़ित हो गए, और उसके बाद
कहीं जगह अकाल पड़ा, कहीं जगह बाढ़ आई, और उसके बाद महामारी कोरोना वायरस, और उसके बाद अगर बारिश भी हुई तो ऐसा बरसाने लगा कि मेघ फट गया, और बहुत सारे जगह उत्तर भारत में लैंडस्लाइड, दक्षिण भारत में लैंडस्लाइड हम लोगों ने देखा। पर्वतें टूटकर बहुत सारा लोगों को या लोगों के ऊपर या लोगों के घरों के ऊपर गिर गया, ये लोग नाश हो गए। और ये ऐसी बरसात, ऐसी बारिश, तबाही की बारिश हम लोगों ने देखा। इस सारा चीज़ जो हो रहा है नैसर्गिक और अनैसर्गिक, नैसर्गिक निसर्ग का प्रतीक, निसर्ग का कोप, और अनैसर्गिक मैं ये कहूँगा कि दूसरे देशों का हम पर आक्रमण, कि एक भय, जैसा चाइना ताक कर बैठा है, पाकिस्तान ताक कर बैठा है कि भारत पर कब आक्रमण करे। ये सारी चीज़ें, ये एक साथ होना और ये सारी चीज़ों को एक ही माहौल में अगर हम देखें तो निश्चित परमेश्वर का हाथ हम कह सकते हैं, परमेश्वर का दंड की हाथ हम कह सकते हैं, परमेश्वर न्याय करने के लिए तैयार है हम कह सकते हैं। लेकिन उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, उसे सारा मान महिमा देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर अचानक कुछ नहीं करता। वो जब इन सारी विषयों को करता है तो उससे पहले उसका मन दुखा हुआ होता है, तो तब वो ऐसा आक्रामक कदम उठाता है। फिर भी ये प्रभु देखिए, अब जैसे मैंने कहा, जैसे वचनों में लिखा है, जैसे हम भजन संहिता में भी हम लोगों ने पढ़ा कि अपने हाथों का बनाया हुआ को नष्ट ना करें। प्रियो, ये परमेश्वर जब दंड दे रहा है या दंड का माहौल तैयार किया है, तो उस बीच में भी ये चाहता है, ये प्रभु चाहता है कि हम पछताएं, हम अपने हृदय से वापस आ जाएं। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे वस्त्र नहीं बल्कि तुम्हारा हृदय से तुम्हारा हृदय मुझे दो, और तुम बाहरी दिखावा ना करते हुए मन से परमेश्वर के पास फिरो। ये प्रभु कहता है कि तुम उपवास करो, तुम अपने अपराधों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने सारे बुराइयों के लिए पछताओ, रो, मेरे पास आ जाओ। और जैसे वचनों में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है, वो हम सभी को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो जब ये कह रहा है तो वो ये कहता है कि अगर तुम पछताओगे, अगर तुम वापस फिरोगे, तो मैं तुम्हें वापस स्थापित करूंगा, या वापस स्थापित होने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। पछताओ, मन फिराओ और अपने आप को तैयार करो। तैयार किस तरह करें? हम पवित्रता में, हम एक अलग परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग, ये जानकर और अपने आप को उसके लिए समर्पित करते हुए हमें रहना है। तो तब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि तब ये हम वापस आने की जो क्रिया है
वो पूर्ण होता है। वापस आने की क्रिया, यानी परमेश्वर के पास जाने की क्रिया, परमेश्वर के पास आने की क्रिया, ये संपूर्ण रीति से होता है। और ऐसा करने से ही हमारे देश के लिए, हमारे लिए एक नई आशा का किरण हम पा सकते हैं। देखिए परमेश्वर के वचनों में उसका वाचा अगर हम देखें, उसके प्रॉमिसेस देखें, उसकी प्रॉमिसेस में ये है कि वो हमें स्थापित करेगा। देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरेशन। वो हमें पुनः स्थापित करेगा, फिर एक बार वो हमें बसाएगा, वो आशीष देगा, और हमारे देश, हमारा घर, हमारा इलाका, हमारा माहौल आशीषित होगा। और प्रभु कहता है वचनों में, वचन 23 से लेकर 25 तक अगर हम पढ़े तो इस तरह कहता है कि वहाँ पर एक नई सिरे से, देयर बी रिवाइवल, एक नई सिरे से उत्तेजना, एक नई सिरे से जीवन हम देख सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं बारिश बरसाऊंगा, वो बारिश जिससे बी बोते समय जो पानी की आवश्यकता है वो पूरा होगा, और वो बारिश बरसाऊंगा जिससे फसल उगने के लिए जो ज़रूरी है उतना बारिश बरसाऊंगा। और कहता है कि मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, तुम्हारा अनाज जो टिड्डियों ने बर्बाद किया, जो नैसर्गिक रीति से विनाशकारी चीज़ों को तुमने अनुभव किया, उन सारी चीज़ों को हटा दूंगा। कहता है कि टिड्डियों को भी मैं हुक्म दूंगा कि हट जाए, टिड्डियों से भी जो नाश हुआ है उन सारी चीज़ों को मैं दे दूंगा, वापस उसके भरपाई करूंगा। उसका वाचा है ये। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरेशन, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ रिजॉइसिंग। और प्रभु कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम आनंदित हो जाओगे, मगन हो जाओगे। प्रियो, आनंदित और मगन होना कौन नहीं चाहता? हम सारे लोग ये चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम हो जाओगे, वापस तुम्हारे अंदर वो खुशी, वो आशीषें बरसेगी। उसकी वाचा का याद हमें आएगी। कभी आएगी? जब इन सारी चीज़ों को वापस होते हुए देखेंगे तो उसके हर एक वाचा को, हर एक प्रॉमिसेस हम रियलाइज कर पाएंगे। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ रियलाइजेशन। हम हर एक वाचा को हम अनुभव करेंगे। और आज अगर हम देखें तो प्रियो, आज परमेश्वर उसके लोगों को न छोड़ते हुए उन्हें हर दिन, हर समय वो उन्हें मिलने आता है या मिल रहा है, या उनके ऊपर आशीषें अब भी बरसा रहा है। इसी कारण हमारे में कितने लोग, या इस देश में कितने लोग, ये महामारी में, इतनी बड़ी आबादी वाली देश में बहुत सारे लोग मर जाना चाहिए था, बहुत सारे लोग पीड़ित होने चाहिए थे, लेकिन हमारे देश में अगर हम आंकड़ा देखें तो मरने वाले की संख्या बहुत ही कम है इस महामारी से, और ठीक होने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये अब तक वैक्सीन निकला नहीं है, फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये परमेश्वर की आशीष है। यही तो आशीष है परमेश्वर की, कि वो नहीं चाहता कि लोग मरे, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, भाषा का क्यों ना हो। परमेश्वर चाहता है कि वो लोग भी जो उसे अभी तक नहीं माने हैं, वे लोग भी उसके समक्षता में आए। वे लोग तो खैर बाद में आएंगे, लेकिन आप और मैं, हमें जाना है पहले। हमारे जाने से, परमेश्वर के पास फिरने से, परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने से लोग हमें पढ़ेंगे
और कहेंगे कि यही सच्चा ईश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है जो इन लोगों को संभाला है, इन लोगों को स्थापित किया है। प्रियो, प्रभु की वाणी यही है कि मन फिराओ और मेरे पास आओ। बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन कराओ। अंदरूनी परिवर्तन होने के बाद परमेश्वर हमारे लिए आशीषों का द्वार खोलेगा। क्यों ना हम इस परमेश्वर के पास जाएं, जैसे यहूदी लोगों ने किया। योएल ने कहा कि मन फिराओ, पछताओ, रो, विलाप करो। वे लोगों ने किया और देखो परमेश्वर उनको आशीषित किया और उसके आशीषों में ऐसी आशीष किया कि आज तक वे लोग आशीषित हैं। आज तक योएल के समय, उसके बाद बीच बीच में बहुत सारा चीज़ें हुई है। वे लोग गिर गए, उठ गए, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़े। प्रभु ने उन्हें आज भी एक छोटा सा देश को आज भी बहुत हम कह सकते हैं कि मजबूत देश बना कर रखा है। हर आशीष उसमें है। उसके लोग उपवास नहीं गिरते हैं, वहाँ पर अकाल नहीं पड़ता, वहाँ पर बुद्धि ज्ञान की कमी नहीं है। वहाँ पर अगर आप देखें तो उनकी लड़ाई की क्षमता भी सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा या सबसे मजबूत है। यह आशीष वो लोगों ने प्राप्त किया। वही आशीष आज परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। हमारे इर्द गिर्द में, हमारे आजू बाजू में जो माहौल तैयार किया, माहौल से परमेश्वर बता रहे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही मेरे अधिकार में सब कुछ रखा हूँ। अगर तुम मन फिराओगे, तुम आओगे, तुम पुकारोगे, तुम विलाप करोगे, तो मेरे पास फिरोगे, तो मेरे पास से आशीष तुम पाओगे। प्रियो, हम इस डर के माहौल में जीते समय परमेश्वर के पास, परमेश्वर की ओर हम फिरें तो निश्चित हम परमेश्वर की आशीषों की पात्र बन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके अनुग्रह से आज हम लोगों ने योएल के किताब से बहुत सारी बातें जान लिए हैं। पिता, उस समय जो वातावरण निर्मित था वही वातावरण आज भी है। उस समय के लोग जिस तरह थे वैसे आज भी लोग, हम सारे लोग वैसे ही बने हुए हैं। पिता, हम सभी को फिर एक बार आपके पास मुड़ने के लिए, आने के लिए हमें तैयार कर, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमें स्वीकार करें। और पिता, हमारे ज़रिए से हमारे घराने, हमारे माहौल, हमारे इलाका, हमारा देश, सभी पे आशीष उतर आएँ और इस देश के सारे लोग आपके गुणगान गाने के लिए योग्य ठहर सके, ऐसे अनुग्रह करें। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮಾತುಗೊಳ್ಳದೆ ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಟೈತ್ಗಳಾಗಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದೆ ದೇವರ ಬಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವರು ನಾವೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಕೊಡುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು 5th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾರ್ತಾ ಶೋಭಾ ರಾಬರ್ಟ್ ಹಿರೇಕೆರೂರು. 5th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸರೋಜಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಡಿಗೇರ್. 6th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐರಿನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ. 6th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಜೋಶ್ವಾ ಸೋಮ್ಸ್. 6th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಯಾ ಸೇನ್ ಅರ್ಥರ್. 8th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟೆಲಾನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ನಾಟಿಕರ್. 9th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಿಯಾನ್ ಜಾನ್ ಅರ್ಥರ್. 10th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಜೂಲಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ನೇಗಲ್. 10th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವೆಸ್ಲಿ. 10th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೇರಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವೆಸ್ಲಿ. 10th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲೋಬೋ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ಸುತಾರ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಕುರಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಲೋಬೋ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಅರ್ಥರ್ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಜೋಯಲ್ ಬೆನ್ ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಅಂಕಲ್, ಹೇಮಾ ಆಂಟಿ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಮಗ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಇವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಗುಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಅಂದರೆ ಇವರ ಸಣ್ಣ ಮಗ, ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಇವರು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಇವರು ಬೇಗನೆ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೆರ್ವಿನ್ ಕೊಪ್ಪ, ಇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೆರ್ವಿನ್ ಕೊಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರು ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೆರ್ವಿನ್ ಕೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೆರ್ವಿನ್ ಕೊಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2 PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रार्थना मारना. आइए हम प्रार्थना करें. इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे. प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं. इस समय पिता, जो प्रियजन अपने जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं, इन सारे लोगों को आपके पवित्र आत्मा में समर्पित करते विनती करते हैं प्रभु कि जैसे ही अपने जीवन के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं पिता, प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप अब तक थे इनके साथ होने दे पिता. आने वाले हर दिन, हर समय, हर पल आपकी प्रसन्नता, आपकी उपस्थिति इनके साथ रहे पिता परमेश्वर. आपके पवित्र चरणों में मार्ता शोभा रॉबर्ट हिरेकेरूर, सरोजा बड़ीगेर, आयरिन चिन्नैया, स्टैनली सोम्स, रिया अर्थर, स्टैलन प्रीतम नाटेकर, शेन अर्थर, जूली नेगल, चार्ल्स वेस्ली, मेरी चार्ल्स वेस्ली, जॉयस लोबो, इन प्रियजनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं. जैसे ये लोग अपने जीवन के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं पिता विनती करते हैं इनको आशीषों, आपकी आसमानी आशीषों से इन्हें तृप्त कर दें. इनके ऊपर आपकी सुरक्षा कवच रखें.
अंधकार की कोई शक्ति, शैतानी कोई ताकत, बुराई या ऐसी कोई विषय इनको आपसे दूर ना करे, बल्कि हमेशा परमेश्वर के मुख्य उजाले में ये प्रियजन अपने जीवनों को व्यतीत कर सके, ऐसे अनुग्रह करें। और परमेश्वर की आशीष हरदम हर पल अपने जीवनों में पाते रहें, ऐसे अनुग्रह करें। पिता, इन प्रियजनों को आप आपकी अगुवाई में चलाएं। उसी तरह प्रार्थना करते हैं इन प्रियजनों के लिए जो बीमार अवस्था में है, जो कमज़ोर अवस्था में है, जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं। पिता, इन लोगों को आपकी घायल हाथों की स्पर्श करें। प्रार्थना विनती करते हैं इस समय सुतार आंटी के लिए, कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए और जोएल के लिए। पिता, इन सभी को आप छूकर संपूर्ण चंगाई देते हुए बल दें, नया बल दें, ताकि प्रियजन नया बल में संतुष्ट रह सकें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं मनोहर अंकल, हेमा आंटी, उनके बेटे गॉडविन, उनके छोटा बेटा थॉमसन और उनके बहुओं के लिए। पिता, इन सारे लोगों को आप संपूर्ण चंगाई प्रदान करें इस महामारी के समय। पिता परमेश्वर, आपने बहुतों को, इस महामारी से पीड़ित लोगों को आपने चंगाई प्रदान किया और आपने दिखाया कि आप सामर्थ्यवान परमेश्वर हो, आप चंगाई देने वाले प्रभु हो। पिता, इस समय यह आपके प्रिय बच्चों को, इस परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इन लोगों को पिता संपूर्ण चंगाई प्रदान करें और शीघ्र ही चंगाई पाते हुए परमेश्वर की गुणगान गाने के लिए फिर एक बार सिद्ध हो सकें, ऐसी आशीष करें। इन्हें हर दिन हर पल आपकी बल से तृप्त कराते रहें। पिता, उसी तरह प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं भाई मैथ्यू केरविन कोपा के लिए, जिनके आपने आपके अनुग्रह में पिता ऊंची डिग्री प्राप्त करने के लिए आशीषित किया। पिता, इस भाई को आप आशीषित करें और इनके परिवार को आशीषित करें। फिर एक बार पिता, इन सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उसी तरह आपके बच्चे आराधना होने के बाद जब दान जमा करेंगे, पिता विनती करते हैं कि उनके दानों के ऊपर आपकी आशीष हो, और जिन्होंने आपके बक्से में जोड़ा है पिता, तूने कहा कि उनके ज़िंदगी, उनके जीवन में आप हमेशा बरसाएंगे आशीषों को। इस समय पिता, इन आपके प्रिय बच्चों को आशीषों से परिपूर्ण करें। और पिता, विनती करते हैं कि इस दिए हुए दानों को आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें। फिर एक बार पिता, हम सारे लोगों को, कलीसिया के सभी सदस्यों को आपके पवित्र आत्मा में समर्पित करते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता, आमेन। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉನ್ನತ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಆಮೇನ್।